Honorable Prime Minister has graciously consented to inaugurate the Sai Hira Global Convention Center here at Prashanti Nilayam in the august presence of the Governor of Andhra Pradesh amidst a galaxy of eminent dignitaries and delegates from India and across the globe. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रशांति निलयम में एकत्रित गणमान्य सज्जनों, सेवा और प्रेम की मशाल थामे देश विदेश से आए हुए युवा और युवतियों, छात्रगण, शिक्षक एवं वैद्यगण और प्रशांति निलयम में उपस्थित हजारों भक्तगण, हम सभी के तरफ से विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन। आपका हर पल, हर पग, हर कार्य देश के लिए समर्पित है। आप हम सभी के लिए गौरव, आत्मविश्वास एवं प्रेरणा के प्रतीक हैं। आपकी उपस्थिति हर पहल को एक निश्चयात्मक पूर्ति प्रदान करती है। आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री अब्दुल नजीर जी, श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आरजे रत्नाकर जी, श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के चांसलर श्री के चक्रवर्ती जी, श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट के सदस्यगण श्री ryuko हीरा जी, श्री एस नागानंद जी, डॉक्टर वी मोहन जी एवं श्री सत्यसाई सेवा संगठन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पंड्या जी। आइए शुभारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। We will commence this morning's proceedings with invocatory Vedam chanting. Sai Ram. गणपति गुम्हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। We now invite the Managing Trustee of Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R.J. Ratnakar Garu, to deliver the welcome address. Sri R.J. Ratnakar. I offer my salutations to Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Andhra Pradesh Sri Abdul Nazir ji, all the trustees on the dais and dignitaries present here, and my dear Sai brothers and sisters who are present in person and those who are watching this program live, my namaskars and loving Sai Ram to all of you. Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. Mother and the motherland are more sacred than the highest heaven, says scriptures. Baba is to encourage all his students and followers to serve their motherland. He wanted all his devotees to be patriotic and serve the nation. All his projects were for the welfare of the humanity. At personal level, Baba used to have a special bond with his mother, Srimati Ishwaramma. Baba in his birthdays used to visit her samadhi and pay respects to the mother. Baba life itself is a message and he set a great example for all of us. Prime Minister Sir, you are tirelessly working in the service of the nation. Your heart throbs for this country. When I was watching your recent visit to America and Egypt,
I was wondering if you could catch up a couple of hours of sleep in a day. Seeing such a packed schedule of yours, we used to feel tired, but you always look fresh and full of energy. Such dedication and hard work is an example for every citizen of this country. Sir, we also have witnessed your special bond with your beloved mother, Srimati Hira Benji, and how you used to go and take her blessings on your birthdays in spite of your busy schedule. You are a role model for every child, every youth, every son in following the dictum Matru Devo Bhava. Sir, Sri Satya Sai Baba started his mission in a very humble way in a remote village before India got its independence. But today, his message has traveled across the globe and attracted millions and inspired them to follow the path of Seva. Baba had a very unique and practical approach for every activity. Baba started many educational institutions and was personally involved in grooming every student. Baba used to interact with students, and when the exam results are announced, he would inquire about the results. If a student says that he got first class or scored 90% in examinations, he would call the teachers and wardens and would inquire about the behavior of the boy. Baba would mention, marks kam hai to parwa nahi, remarks nahi hona chahiye. He always emphasized on character building of young men. Sir, Baba also started many healthcare initiatives as he always focused on relieving the suffering of poor and needy. Once Baba sent a group of doctors for a medical camp in a nearby village. When the doctors came back, Baba inquired, how many people have you treated in the camp? The doctors were very happy and conveyed that they had treated about 600 patients. Baba did not look pleased. Seeing Baba's reaction, the doctors asked if they had done anything wrong. Baba's reaction, itni si choti gaon mein itne log bimar pade hain. Such a small village, how could so many fall sick? He was concerned about the healthcare facilities for rural people. He wanted that every citizen get the best medical care and every child should have the access to the quality education irrespective of caste, creed, color and religion. Sir, Baba executed projects worth thousands of crores, be it in providing drinking water to the villages, building hospitals and educational institutions. But he never had a bank account for himself, nor he held any property. Baba used to say, good work is God's work. And when you do selfless seva with a pure heart, all the necessary resources will automatically flow. Everything he did was only for others. Sir, you are also from a very humble background. You have risen to the highest position. You are an acclaimed world leader, yet you continue to be rooted in the Bharatiya culture. Sir, we are indeed grateful to you for being with us for the inauguration of Sai Hira Global Convention Center. This center is a labor of love from all the Sevaks. Sri Hiraji from Japan, an ardent follower of Baba for over 5 decades. Last year, he was conferred Padma Shri Award by the Government of India. Sri Hiraji, the donor of this convention center, is amidst us. Thank you, Hiraji. Sir, today we have more than 3,000 delegates and their family members in Puttaparthi from over 50 countries. They are attending Leaders Conference of Sri Satya Sai Global Council. They all deem it a privilege to be in Prashanti Nilayam and to be part of this occasion. Sir, before I close, आपसे हमारा एक विनती है. Sir, you have visited Prashanti Nilayam many times when Baba was physically with us. I, on behalf of Sri Satya Sai Central Trust and all the devotees, request you to visit Puttaparthi, the Janmabhoomi of Sri Satya Sai Baba, and receive blessings. Sai Ram, Jai Hind. Now I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly inaugurate the Sai Hira Global Convention Center. भाइयों और बहनों,
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ऐतिहासिक क्षण का। We will now have a video presentation on various initiatives taken up by the Sri Satya Sai Central Trust. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विचार हृदय में एकता और विश्व शांति की चेतना को जागृत करने वाली अमृत धारा है। We now request our Honorable Prime Minister to address the August gathering. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साई राम। साई राम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्रीमान अब्दुल नजीर जी, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री के. चक्रवर्ती जी, मेरे बहुत पुराने मित्र श्री री यूको हीरा जी, डॉक्टर वी मोहन जी, श्री एम.एस. नागानंद जी, श्री निमिष पांड्या जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको फिर से एक बार साई राम। मुझे अनेक बार पुट्टपर्थी आने का सौभाग्य मिला है। मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार भी आपके सबके बीच आता, आपसे मिलता, वहां उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता, लेकिन यहां की व्यस्तता के चलते मैं उपस्थित नहीं हो सका। अभी भाई रत्नाकर जी मुझे निमंत्रण देते समय कहा कि आप एक बार आइए और आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है कि रत्नाकर जी की बात को करेक्ट करना चाहिए। मैं वहां जरूर आऊंगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबके बीच ही हूं। मैं श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों और सत्य साई बाबा के सभी को, भक्तों को आज के लिए, इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साई बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, कोई भी विचार सबसे प्रभावित तब होता है जब वो विचार आगे बढ़े, कर्म के स्वरूप में आगे बढ़े। थोथे वचन प्रभाव पैदा नहीं करते हैं, जितना कि
एक सत्कर्म पैदा करता है। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहां श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर, ये थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है। हमारे यहां कहा भी जाता है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः, अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। सत्य साई बाबा का जीवन अपने आप में इसका जीवंत उदाहरण है। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। और मैं तो आज रत्नाकर जी से आग्रह करूंगा और सभी हमारे साईं भक्तों से भी आग्रह करूंगा, क्या ये हमारा नया बना हुआ जिला जो साईं बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, ये पूरा पुट्टपर्ती जिला, क्या आप इसको 100% डिजिटल बना सकते हैं? हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलग ही पहचान बन जाएगी। और बाबा के आशीर्वाद से रत्नाकर जी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दें, तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्मदिन तक पूरे जिलों को डिजिटल बना सकते हैं, जहां कोई एक कैश रुपये की आवश्यकता नहीं होगी, और ये कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग की भागीदारी से आज परिवर्तन आ रहा है। इसलिए ग्लोबल काउंसिल जैसे आयोजन भारत के बारे में जानने का और बाकी विश्व को इससे जोड़ने का एक प्रभावी जरिया है। साथियों, संतों को हमारे यहां अक्सर बहते जल की तरह बताया जाता है, क्योंकि संत न कभी विचार से रुकते हैं, न कभी व्यवहार से थमते हैं। अनवरत प्रवाह और अनवरत प्रयास ही संतों का जीवन होता है।
एक सामान्य भारतीय के लिए ये मायने नहीं रखता कि इन संतों का जन्मस्थान क्या है। उसके लिए कोई भी सच्चा संत उसका अपना होता है, उसकी आस्था और संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। इसलिए हमारे संतों ने हजारों वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का पोषण किया है। सत्य साईं बाबा भी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में जन्मे, लेकिन उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में हैं। आज देश के हर क्षेत्र में सत्य साईं से जुड़े स्थान और आश्रम भी है। हर भाषा, हर रीति रिवाज के लोग प्रशांति निलयम से एक मिशन के तहत जुड़े हैं। यही भारत की वो चेतना है जो भारत को एक सूत्र में पिरोती है, इसे अमर बनाती है। साथियों, श्री सत्य साईं कहते थे, सेवा अने रेंडू अक्षराल्लोने अनंत माइन शक्ति इमीडी जिंदी। अर्थात सेवा के दो अक्षरों में ही अनंत शक्ति निहित है। सत्य साईं का जीवन इसी भावना का जीवंत स्वरूप था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साईं बाबा के जीवन को करीब से देखने का, उनसे सीखने का और अविरत उनकी आशीर्वाद की छाया में जीने का अवसर मिला है। उनका हमेशा मेरे लिए एक विशेष स्नेह होता था। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिलता था। जब भी उनसे बात होती थी, वो गहरी सी गहरी बात भी बेहद सरलता से कह देते थे। मुझे और उनके भक्तों को श्री सत्य साई के कितने ही ऐसे मंत्र आज भी याद है। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क, एवरी एक्सपीरियंस इज ए लेसन, एवरी लॉस इज ए गेन। ऐसे कितने ही जीवन सूत्र श्री सत्य साईं हमें देकर गए हैं। इनमें संवेदनशीलता है, जीवन का गंभीर दर्शन भी है। मुझे याद है, गुजरात में भूकंप आया था, तब उन्होंने मुझे विशेषकर फोन किया था। हर तरह से राहत और बचाव के लिए वो खुद लग गए थे। संस्था के हजारों लोग उनके निर्देश पर दिन रात भूज के प्रभावित इलाके में काम कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी चिंता ऐसे करते थे जैसे कोई बहुत अपना हो, बहुत करीबी हो। सत्य साईं के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा थी। हर नर में नारायण, हर जीव में शिव देखने की यही भावना जनता को जनार्दन बनाती है। साथियों, भारत जैसे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आज जब हम विरासत और विकास को
एक गति दे रहे हैं, तो सत्य साई ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आपका स्पिरिचुअल विंग बाल विकास जैसे कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी के भीतर सांस्कृतिक भारत को गढ़ रहा है। सत्य साईं बाबा ने मानव सेवा के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया, प्रशांति निलयम में हाईटेक हॉस्पिटल बनाकर तैयार हुआ। सत्य साईं ट्रस्ट वर्षों से निःशुल्क शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज भी चला रहा है। राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में आपकी संस्था के प्रयास बहुत प्रशंसनीय हैं। देश ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सत्य साई से जुड़ी संस्थाएं उस दिशा में भी समर्पित भाव से काम कर रही हैं। देश आज जल जीवन मिशन के इसके तहत हर गांव को साफ पानी की सप्लाई से जोड़ रहा है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट भी दूर दराज के गांवों में निःशुल्क पानी पहुंचाकर इस मानवीय कार्य में भागीदार बन रहा है। साथियों, 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। आपने देखा है, पिछले महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर किस तरह यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक ही समय पर एक ही जगह योग के लिए जुटे। योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। भारत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से सीखने की बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अतीत, हमारी धरोहर, इनके प्रति जिज्ञासा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिज्ञासा ही नहीं, आस्था भी बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मूर्तियां भारत आई हैं, जो मूर्तियां 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी। भारत के इस प्रयासों के पीछे, इस लीडरशिप के पीछे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्य साई ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है। आपने अगले 2 वर्षों में प्रेम तरु
प्रेम तरु के नाम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण हो, और मैं तो चाहूंगा, जब मेरे मित्र भाई हीरा जी यहां बैठे हैं, तो जापान की जो छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक है मियावाकी, मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग हमारे यहाँ ट्रस्ट के लोग करें, और हम सिर्फ पेड़ नहीं, अलग अलग जगह पे छोटे 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 फॉरेस्ट बनाने का एक नमूना देश के सामने पेश करें, तो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें एक दूसरे को जिंदा रखने की ताकत होती है। पौधे को जिंदा रखने की ताकत दूसरे पौधे में होती है। मैं समझता हूं कि इस का अध्ययन हीरा जी तो यहाँ है, और मैं बड़े हक से हीरा जी को कोई भी काम बता सकता हूँ, और इसलिए मैंने आज हीरा जी को भी बता दिया। देखिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो, आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है, मुझे बताया गया है, और अभी छोटी सी आपकी वीडियो में दिखाया गया। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख स्टूडेंट्स को श्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के इनिशिएटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, भारत की पहचान को मजबूती देंगे। साथियों, सत्य साई का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसी शक्ति से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और पूरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार रूबरू नहीं आ पाया हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आऊंगा। आप सबके बीच पुराने दिनों को याद करते हुए बड़े गौरव पल बिताऊंगा। हीरा जी तो बीच बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन मैं आज विश्वास देता हूं कि आज भले मैं नहीं आ पाया, लेकिन आगे जरूर आऊंगा। और इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साईं राम।